Hello friends. Now in last topic we studied about the theory of social contraction. In that we studied Locke's perception of human nature. Apart from that we studied Locke's perception about state of nature, and we studied the state of nature had some serious inconveniences. What were the inconveniences we studied in the last lecture. This lecture we are going to start with, we are just continuing that point with the new sub point in that. That is the purpose of the contract. Main purpose of the contract, the protection and preservation of natural rights, that is life, liberty and property. See, main purpose of the contract क्या है? The protection and preservation of natural rights, that is the life, liberty and property. Purpose क्या था? एक ही purpose था, to protect and preserve the natural right. Under contract, state was formed with some expectation. See, under contract, state was formed with some expectation. The features of Locke's social contract are as follow. See, अभी कुछ contract basis पे state अपना form हुआ है और उसके कुछ exceptions भी है. Now the special features of Locke's social contract are as follow. To contract. According to Locke, by the first contract, civil society, that is the state, was constituted. By the second contract, the state was established. See, टू कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉकी क्या बोल रहा है? एक कॉन्ट्रैक्ट में आप सिविल सोसाइटी फॉर्म करते हो और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में द गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड. नाउ द सिविल सोसाइटी में कौन होता है? द स्टेट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इन द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड. लाइक पहले स्टेट बना फिर गवर्नमेंट बना. दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड बाय ईच विथ ऑल. सी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड बाय ईच विथ ऑल. अ सिंगल बॉडी पॉलिटिक्स अंडर वन गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड. अभी एक गवर्नमेंट का सिंगल बॉडी बना था, एक सिंगल बॉडी बना था पॉलिटिक्स का और एक ही गवर्नमेंट बनी थी. लेकिन बहुत ज़्यादा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग सरकार नहीं बनी थी. यहाँ पे क्या हो गया? अ सिंगल बॉडी पॉलिटिक्स अंडर वन गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड. कॉन्ट्रैक्ट वॉज स्पेसिफिक नॉट जनरल. कॉन्ट्रैक्ट क्या था? एकदम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बना था एंड द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट जनरल, एज इन जनरल सबके लिए ऐसे कुछ नहीं बना था. द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वेरी स्पेसिफिक. According to Locke, in the contract, each individual gives up not only all natural rights but also one of interpreting and executing the law of nature. See, according to Locke, in the contract, each individual gives अकॉर्डिंग टू लॉकी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये जो क्या था, लोगों को क्या बोला? आप आपके सारे नेचुरल राइट्स दो, गिव अस द नेचुरल राइट्स बट ऑल्सो वन ऑफ इंटरप्रिटिंग एंड एक्सिक्यूटिंग द लॉ ऑफ नेचर. और नेचुरल राइट्स आप दो हमको थोड़े से, तो आपको क्या है? प्रॉपर राइट्स हम देंगे. फिर लोगों ने क्या बोला? हम राइट्स देंगे बट हमको प्रॉपर लॉ चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, तब भी हम देंगे. दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज स्पेसिफिक. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, it was specific. No absolute sovereign. In this contract, people surrendered their rights not to any person or group but to the community as a whole. See, अब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या किया? लोगों ने अपने राइट्स तो सरेंडर किए, तो एक ग्रुप को या किसी सिंगल आदमी को नहीं किए बट पूरी कम्युनिटी को किए एज अ होल. Hence, community became superior. तो पूरी कम्युनिटी क्या हो गई? That community became superior. Government is entrusted with certain powers to protect the rights of the people. See, government क्या है? Government is entrusted with certain powers to protect the rights of the people. Government को कुछ पावर दिए ताकि वो राइट्स थोड़े से प्रोटेक्ट करे, जो लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्ट करेंगे. Next is the sovereignty of the community, that is the people. The sovereign power created by the contract vested not in a single man but in the community as a whole. See,
द सोवियत पावर क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो सोवियत पावर मिली थी वो क्या है, किसी सिंगल आदमी को नहीं मिली थी बट पूरे कम्युनिटी को मिले थे। सी अपन ने पहले क्या दिए, अपने राइट्स, नेचुरल राइट्स किसको दिए हैं, पूरी पूरी कम्युनिटी को एज ए होल दिए हैं, ना ही अपन ने किसी ग्रुप को दिए है, ना ही किसी सिंगल पर्सन को दिए, बट वी हैव गिवन इट टू अ होल ग्रुप। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया है, पावर भी क्या है, किसी सिंगल आदमी को दी है क्या, या किसी सिंगल ग्रुप को दी है क्या, नहीं, पावर भी किसको दिया है, फॉर द कम्युनिटी। नेक्स्ट इज द नेचुरल राइट्स। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट एवरी मैन विल रिटेन नेचुरल राइट्स। सी आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट, हर किसी को, जब आपका स्टेट अच्छे से, अपना स्टेट अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाएगा, हर किसी को नेचुरल राइट्स मिलेंगे। द स्टेट विल हैव एन ऑब्लिगेशन टू अनहोल्ड दिस राइट्स। द स्टेट को क्या है, स्टेट कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। यूनानिमस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वॉज यूनानिमस, मेड बाय द पीपल विद देयर ओन कंसर्न। अभी कॉन्ट्रैक्ट जो बना था वो किसने बनाया था, लोगों ने बनाया था, सबकी मर्जी से, सबके कंसर्न से, राइट। लाइक आपकी कम्युनिटी जो है, वो कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से कंसर्न लिया और उस हिसाब से आपका यू हैव मेड अप योर कॉन्ट्रैक्ट वॉज यूनिवर्सली मेड बाय द पीपल विद देयर ओन कंसर्न। लोगों के कंसर्न से कॉन्ट्रैक्ट बना था। हेंस गवर्नमेंट वुड बी बेस्ड फॉर्मली अपॉन द कंसेंट ऑफ द मासेस। तो जो नई गवर्नमेंट बनी है वो कैसे बनेगी, लोगों के कंसर्न के हिसाब से ही बनेगी, क्योंकि बहुत मेजोरिटी ऑफ देम से सब एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो सब कुछ कैसा चलेगा, इट विल बी completely based as per the people. Irrevocable contract. The contract is irrevocable because after having once made it, the people cannot revert back to the freedom of the state of nature. See, contract क्या है, irrevocable, मतलब कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होगा, ना ही आप कॉन्ट्रैक्ट पीछे ले सकते हो, राइट। एक बार आप बनाओ, सोच समझ के करो कॉन्ट्रैक्ट, सोच समझ के सब करो। The contract is irrevocable because after having once made it, the people cannot get back to the freedom of the state of nature, right। अपने स्टेट, आपके नेचुरल राइट्स वगैरह जो भी क्या है आपने सब सरेंडर किए हैं यहाँ पे, और अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिया है, तो आपने राइट्स देने के बाद आप फिर से हमको हमारे राइट्स दो वापस, हमको हमारी आज़ादी चाहिए, ये सब कुछ नहीं कर सकते। आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो विद द कंसर्न ऑफ पीपल, राइट, with the concern of masses. Now moving towards the next point, that is Locke's view about state and government. Locke's की view क्या है state और government के बारे में, the structure of the state and its relationship with the subject explained by Locke are as follow. Distinction between the state and government. Now according to Locke क्या है, state और government दोनों अलग अलग किए हैं उन्होंने। अभी क्यों, क्या, कैसे, इन सब का तो जवाब मैं भी नहीं जानती, so we can have a look on it. Locke distinguish between the state and government. Locke ने क्या किया, state अलग है और government अलग है। According to him, state comes into existence as a result of second contract. See, according to him क्या है, state comes into existence as a result of second contract. See, according to Locke क्या है, state comes into, state कब आता है existence में, as per the result of the contract. The rulers and the ruled together constitute the state. See, यहाँ पे क्या है, the ruler and the ruled, जो ruler है और जो रूल कर चुका है, ये जो रूल करने वाला है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं। Whereas those entrusted the responsibility to rule constitute the government. Whereas those entrusted the, और इसके अलावा जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो टू रूल द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसको बोला यहाँ पे, जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कॉन्स्टिट्यूट बनाने की,
सबका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट. दस स्टेट इज सुपीरियर देन द गवर्नमेंट. सी स्टेट सुपीरियर है, राइट. अगर आप कंपेयर करो स्टेट और गवर्नमेंट में तो हु इज सुपीरियर? द स्टेट इज सुपीरियर. Now moving towards the next page, right to revolt the government. Locke said people have no right to revolt against the state. Locke क्या बोलता है? लोगों को कोई हक नहीं है कि वो स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट करे. But people can revolt against the government and can change the government for specific purpose. See, आप स्टेट के साथ रिवोल्ट नहीं कर सकते, बट आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हो और किसी स्पेसिफिक पर्पस से आप आपकी गवर्नमेंट भी चेंज कर सकते हो, राइट. अपने यहाँ पे भी ऐसे ही होता है ना इंडिया में, राइट. आप स्टेट को चेंज कर सकते हो क्या? स्टेट के जो लॉज रेगुलेशन ये सब चेंज कर सकते हो क्या? नहीं. आप महाराष्ट्र स्टेट में हो तो आप महाराष्ट्र स्टेट में जो पहले से चल रहा है वो वैसे ही चलेगा. आप स्टेट किसी रीज़न से स्टेट छोड़ के जा सकते हो, बट आप रिवोल्ट करके स्टेट पूरा बदल नहीं सकते आपका. बट आप स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो बदल सकते हो ना. कहाँ पे कांग्रेस है, कहाँ पे बीजेपी है, कहाँ पे राष्ट्रवादी है. लाइक आप अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी तो आप नेक्स्ट टाइम वोट नहीं दे के क्या करोगे? गवर्नमेंट को हरा दोगे. सेम थिंग ना. तो इन अ सिंपल वे अपना इंडिया का पॉलिटिक्स भी आप ऐसे ही ध्यान में रखोगे ना तो इट वुड गो इन अ मच बेटर वे. कहाँ पे है? The natural rights of people are inevocable and must be protected by the government. See, natural rights of the people क्या है? इनएवोकेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट का काम है नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट करना. किसी और का काम है कि आपके नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट करना? नहीं, गवर्नमेंट का ही काम है आपके राइट्स प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अपन अपने राइट्स अपन गवर्नमेंट को ही देते हैं. इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट दिस राइट इट डिजर्व टू बी चेंज. बराबर है. अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो क्या करोगे? आपको गवर्नमेंट चेंज करनी पड़ेगी ना. आप नेक्स्ट टाइम वोट दोगे क्या? अभी सपोज कोई XYZ पार्टी अच्छे से काम नहीं कर रही है आपके यहाँ पे, लाइक जो आपकी लोकल कम्युनिटी में आपको कुछ हेल्प नहीं कर रही है, नॉर्मल वो कुछ काम नहीं कर रहे, इवन दे डोंट ट्रीट यू प्रॉपरली, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट टाइम? आर यू गोइंग टू वोट देम? नो, यू वोंट गिव देम एनी वोट नेक्स्ट टाइम. और इससे क्या होगा? गवर्नमेंट अपने आप चेंज हो जाएगी. The British people, when they changed their government in 1688, were justified. See, British people ने क्या किया? उन्होंने अपना गवर्नमेंट चेंज किया था. कब? 1688 में, लेकिन with some justified reason. Locke repeatedly asserted the end of the government is the good of the community. तो लॉकी क्या बोल रहे हैं? रिपीटेडली बोल रहे हैं, द एंड ऑफ द गवर्नमेंट इज द गुड ऑफ द कम्युनिटी एंड दैट ऑल स्टेट मस्ट बी फोकस्ड ऑन कंसर्न. और हर स्टेट को फोकस करना चाहिए. He said the Sutra king were not attempting the goodness of the community they ruled was not based on the consent of the people. See, सूत्र किंग जो था, उन्होंने एक एग्जाम्पल एज एन, यू कैन टेक दिस एज एन एग्जाम्पल. जो सूत्र किंग है ना, वो लोगों की भलाई के लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे. हाँ, और वो रूल भी है ना लोगों के हिसाब से नहीं कर रहे थे, ना ही लोगों की मर्जी से कर रहे थे. लाइक पीपल की अगेंस्ट ही सब कुछ हो रहा था. तो उन्होंने क्या किया? Therefore they were justified dismiss their power in 1688. तो फिर उन्होंने क्या किया? उनका पावर डिसमिस कर दिया 1688 में. सी, अपन लोग ही सरकार बनाते हैं, और अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करे तो अपन लोग ही सरकार गिरा भी सकते हैं. तो वी आर द सिटीजन, वी आर द पीपल हु बिल्ड द गवर्नमेंट एंड वी आर द पीपल हु कैन रूइन द गवर्नमेंट ऑल्सो. लाइक अपन बोलते ना, अरे हाँ, आम आदमी क्या कर सकता है?
अगर आम आदमी एकजुट आए तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इट ऑल अबाउट योर थिंकिंग। अरे मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अगर ये सोच छोड़ के अगर आप सोचोगे यार मैं अकेला आगे तो बढ़ता हूँ, मेरे पीछे 100 लोग आ जाएंगे और हम सब कर लेंगे, ऐसा आप सोचोगे तो आप पक्का आगे बढ़ोगे लाइफ में। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी मैथ्स की बुक लेकर। एम्फसाइज ऑन पॉपुलर सोवेन। See, next point is the emphasis on popular sovereignty. Locke did not build up a legal sovereignty. See, Locke ने क्या किया? Locke did not build up a legal sovereignty. He put emphasis on popular sovereignty, that is, after the contract, community will be sovereign. Government will work for specific purpose. See, यहाँ पे क्या हो गया? Locke ने क्या किया? He did not build up a legal sovereignty. He put emphasis on popular sovereignty, that is, after the contract, community will be sovereign. मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कम्युनिटी का, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो आप आपकी मर्जी से जियो, यू वर्क थोड़ा सा कम्युनिटी के बारे में, लेकिन आपको सारी आज़ादी है। गवर्नमेंट विल वर्क फॉर स्पेसिफिक पर्पस। गवर्नमेंट क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक रीजंस रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस रहते हैं। गवर्नमेंट विल वर्क only for the specific purpose. If the government failed in doing their work, then people had the right to revolution against such government. See, अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तब भी फिर people had the right, तब भी आप लोग को राइट है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करो। अगर आपकी गवर्नमेंट फेल हुई तो यू हैव अ राइट टू वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट निकाल दो। लाइक आप राइट ऑफ रिवॉल्यूशन, आपको लाइक राइट ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, स्टैंड रेज योर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट एज दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एंड गवर्नमेंट निकल जाएगी अपने आप से, एंड यू कैन फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट इफ यू विल, कि बाबा नहीं दूसरी गवर्नमेंट बनाते हैं एंड विल मेक श्योर कि ये गवर्नमेंट ने जो गलती की है वो ये गवर्नमेंट ना करे। फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेड गवर्नमेंट. Locke opposed the idea of absolute sovereignty. He advocated government-based division of power and subjected to number of limitations. These limitations are as follow. See, Locke ने क्या किया? Locke opposed the idea of absolute government, of absolute sovereignty. He advocated government based on division of power. उसने क्या बोला? गवर्नमेंट कैसा बनना चाहिए? सबको पावर डिवाइड करके दो. लाइक अपने यहाँ पे है ना, हेल्थ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, फूड मिनिस्टर है, राइट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर है. हर मिनिस्टर अलग अलग है अपने यहाँ पे, राइट, एंड उनके कुछ लिमिटेशंस भी है. उनके क्या लिमिटेशंस रहेंगे? विल हैव अ लुक एट इट. ही शुड नॉट वायलेट द नेचुरल राइट्स ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड नॉट वायलेट द नेचुरल राइट्स ऑफ द पीपल. गवर्नमेंट विल वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, राइट. गवर्नमेंट आम आदमी के लिए काम करती है ना, बेसिकली तो ऐसा ही रहता है. क्यों आम आदमी के लिए काम करती है? क्योंकि वो आम आदमी ने ही गवर्नमेंट बनाई रहती है उनके लिए काम करने के लिए. तो गवर्नमेंट का भी काम है कि इट विल वर्क ओनली फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट. इट कुड नॉट गवर्न एब्रेटेडली. मतलब आप आपके हिसाब से, लाइक मैं ऑफिसर बन गया तो मैं मेरे हिसाब से काम करूँगा, ऐसा नहीं कर सकते. इट मस्ट गवर्न अकॉर्डिंग टू लॉ. आपको काम लॉ के हिसाब से ही करना चाहिए. इट कुड नॉट टैक्स द इंडिविजुअल विदाउट देयर कंसर्न. आप इंडिविजुअल से टैक्स नहीं ले सकते विदाउट देयर कंसर्न, राइट. अगर आपको टैक्स लेना है, किसी भी चीज़ का टैक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो पहले आप लोगों के इरादे जानो. इफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एग्रीज देन ओनली यू कैन टेक द टैक्स. सोर्स ऑफ पावर इज द पीपल, क्योंकि सोर्स ऑफ पावर क्या है? लोग ही है. नेक्स्ट, द लॉ ऑफ गवर्नमेंट शुड कन्वर्ट द लॉ ऑफ नेचर. सी, जो लॉज गवर्नमेंट के हैं वो लॉ ऑफ नेचर दोनों से थोड़ा सा मैच होने चाहिए. लाइक गवर्नमेंट के लॉज पूरे अलग, लॉ ऑफ नेचर पूरे अलग, ऐसा नहीं होगा. दोनों में कुछ तो मैच चाहिए. A government which violates its limitation was not worth of obedience. जो गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करती, लॉ ऑफ नेचर को
कंफर्ट नहीं कराती, लॉ ऑफ नेचर अच्छे से फॉलो नहीं करती, वो गवर्नमेंट डिसोबीडियंट गवर्नमेंट कहलाई जाएगी। दस लॉ की एडवोकेटेड लिमिटेड गवर्नमेंट, इसलिए लॉ की क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट लिमिटेड रखो, छोटा थोड़ा छोटा ही रखो गवर्नमेंट। नाउ मेजोरिटी रूल, लॉकीज कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड द रूल ऑफ मेजोरिटी। सी लॉकी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या था, रूल ऑफ मेजोरिटी था। द लॉ ऑफ नेचर कुड नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। सी लॉ ऑफ नेचर क्या है, आप ज़बरदस्ती किसी पे नहीं कर सकते अनलेस माइनॉरिटी सबमिट्स टू विल ऑफ मेजोरिटी, अनलेस लोग मेजोरिटी में हाँ ना बोले उसके लिए। द मेजोरिटी हैड द राइट टू एक्ट फॉर द होल कम्युनिटी। अच्छा, किसी बात पे अगर आपको किसी बात पे बहस हो रही है देन वो फॉर द मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी लोग हाँ बोल रहे हैं, सहमत है या फिर ना बोल रहे हैं, वॉट एवर द मेजोरिटी गोज, वॉट एवर जो मेजोरिटी लोगों का डिसीजन होगा, यू आर सपोज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ द डिसीजन, क्योंकि वो मेजोरिटी ऑफ द डिसीजन जो रहेगा इट वुड बी फॉर द होल कम्युनिटी। मतलब जो अगेंस्ट थे उनको भी वो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत लोगों का व्यू है, वो बहुत लोगों का राय है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। लॉकी deposited a constitutional state where the relation between people and government and among people themselves will be determined by the rule of law, not by the abstractness. See, लॉकी क्या बोलता है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट यहाँ पे कैसे बनेगा, इट शुड हैव अ रिलेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, राइट। लाइक आप लोगों का सोचो, उस हिसाब से गवर्नमेंट बनाओ, जो भी डिसीजन लेना है लोगों का सोच के लो। तो क्या है, गवर्नमेंट और आम लोगों का रिलेशन, दैट इज़ द पीपल, इन दोनों का रिलेशन अच्छा रहेगा, तभी अमंग पीपल देमसेल्फ, जो पीपल है वो उनके हिसाब से रूल डिसाइड करेंगे, ताकि एवरीथिंग गोज ऑन इन अ स्मूदर वे। लाइक हर किसी पे आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, ना ही गवर्नमेंट किसी पे कुछ फोर्सफुली कर सकती है। विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर we'll study the Locke's advocacy of limited and constitutional government. We'll study this in the next lecture. Thank you.